सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇੰਪਲਸ। ਇੰਪਲਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? when the force is constant in magnitude and direction। ਇੰਪਲਸ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਿਚ ਇਟ ਐਕਟਸ। ਮਤਲਬ ਇੰਪਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਥੋੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਆ ਫੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਸ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਊਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੋਰਸ applied to a 2 kg object at rest moves it 4 meters in 2 seconds. What impulse was applied to the object? ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ 2 kg ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਰੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰਆਲ 4 ਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਐਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ 2 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੰਪਲਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ। ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਇੰਪਲਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਨਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮਾਸ ਪਤਾ, ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਤਾ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਪਤਾ, ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ut ਪਲਸ ਹਾਫ ft ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4 ut 0 ਪਲਸ ਹਾਫ f ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ into 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਜੋ f ਹੈ ਇਹ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ f ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਮਾਸ 2 ਆ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ 2 ਆ, 4 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇੰਪਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? इंपल्स फोर्स इंटू टाइम हो गया। फोर्स हो गया 4 इंटू टाइम इज इक्वल टू 8 न्यूटन सेकेंड। अब फोर्स न्यूटन च होगी, टाइम सेकंड हो गया, न्यूटन सेकंड का यूनिट आ जाएगा। बस सिंपल जा कंसैप्ट है बस कल। हुण जो नैक्सट क्वेश्चन करने ने आपां ने है इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਾਲਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਵਰਕ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਫੋਰਸ is equals to change in kinetic energy। ਇਹ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਮੋਸਟਲੀ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨੇ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਵਰਕ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖੋ। पहला क्वेश्चन कर रहा है, स्टेटमेंट देख लो।
A bullet of mass m is fired with the speed u at the body of mass m, which is receding in the same line with the speed v. The bullet perforates the body and emerges with the speed v in the same line in which it is fired. Show that subsequent speed of the body is v plus m u minus v upon m. चलो क्वेश्चन देखना की है, एक बुलेट है ਉਹਦਾ ਮਾਸ m है, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਵੱਡੀ ਬੋਡੀ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕੈਪੀਟਲ m, ਬੋਡੀ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕੈਪੀਟਲ m ਆ ਬੁਲਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਸਮਾਲ m ਆ, ਇਹ u ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ, u ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ u ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਪਰਫੋਰੇਟ ਮਤਲਬ ਚੀਰ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰਫੋਰੇਟ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਮਾਸ m ਹੈ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਫੋਰੇਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁਣ v ਹੋ ਗਈ ਬੁਲਟ ਦੀ, ਆ ਬੁਲਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ v1 ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ v plus mu minus v upon m, ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਇੰਪਲਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ प्लस मास इंटू वेलोसिटी, पहला आ गया जी। अगे टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम, ये आ गया मास इंटू वेलोसिटी, जो पहला लिख लो, इसका मास m सीगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये आप लभनी है बाद वाली वेलोसिटी। कंजर्वेशन देयरफॉर principle of by principle of conservation of linear momentum, ये आऊगा mu plus mv is equals to mv plus mv, आप लास्ट लभनी अपने, ये आ गया mv plus mu mv is equals to mv1, ये ਚੱਕ के आप इधर ले गए तो v1 आ गया, m से डिवाइड किया कैंसिल हो गया, इन्होंने m से डिवाइड करता, नाले स्मॉल m कॉमन कट लिया, ये अपना आंसर है। अगे जिहड़े कंसैप्ट है मोस्टली पिछले कंसैप्ट लाए हैं, इंपल्स का कंसैप्ट घट ही है, जे इंपल्स पूछा होगा तो बस फोर्स इंटू आप टाइम कर लो। तो आ क्वेश्चन सीगा जी, अगे क्वेश्चन देखना अपन, अगे नेक्स्ट क्वेश्चन करना जी। A bullet of mass m kg is fired into a fixed target of mass m kg and penetrates through a distance a meters. If target was free to move, show that distance penetrated would be ma upon capital M plus m meters and the kinetic energy lost would be m upon m plus n of its initial काइनेटिक एनर्जी। सो देखो की कहा उन्होंने, आपन दिता होया हैगा उन्होंने कि कोई जे बुलेट है वह मास m है, एक वड्डा मास है वो कैपिटल M,
जे ये टारगेट रैस्ट विच होवे, बुलेट जे पर फायर किया आपने, तो बुलेट जो है वो पेनिट्रेट होंदा होंदा अंदर धसना, बुलेट जो है वो अंदर ए डिस्टेंस तक जाऊगा। इस मतलब कि ए डिस्टेंस तक अंदर जाऊगा। उस तो बाद दोबारा जे पहला टारगेट फिक्स सीगा, जे टारगेट फिक्स ना होवे, फ्री टू मूव होवे, जे फ्री टू मूव होगा मतलब जे गोली मारांगे फिर पता थोड़ा ये भी अगे होगा। तो जे फ्री टू मूव होवे तो उस केस दे विच जे आपां फायर करांगे तो जो डायग्राम बना रहे मास ये फिक्सड वास्ते है जी, ये फ्री टू मूव। जे फ्री टू मूव होएगा तो बुलेट जिहड़ा हैगा अंदर पेनिट्रेट करेगा, तो आह डिस्टेंस पता करना कि आह डिस्टेंस कितना होगा, कि जे फ्री टू मूव होएगा तो अंदर कितना पेनिट्रेट करेगा वो दस्या है उन्होंने। ये आपने शो करना हैगा कि यह एम ए अपॉन एम प्लस एम अंदर जाएगा जे फ्री टू मूव होएगा उस केस। काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट तो पता ही किवें कढ़नी होंदी है, पहला क्वेश्चन कितने ने इनिशियल कढ़ लवांगे, फाइनल कढ़ लवांगे, इनिशियल चो माइनस फाइनल कर देवांगे, वो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट आ जाएगी। चलो हुण ये करते हैं आपां इह की करना। ये क्वेश्चन पहला कितने हुए ने कि कितना अंदर जाऊगा, स्टार्टिंग कितने सीगे अपने प्रिंसीपल ऑफ वर्क एनर्जी का क्वेश्चन कि कितना अंदर जाएगा, रजिस्टेंस कितनी होगी, वो कितने सी अपने जो यदि आप रजिस्टेंस आर मान लें तो वर्क डन की होगा, ये होंदा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नैगेटिव। हुण ये ध्यान च होवे, पहला क्वेश्चन कितने होने सारे वही कंसैप्ट पिछे वाला, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, फोर्स इधरले पासे, रजिस्टेंस फोर्स इधरले पासे होगी, डिस्प्लेसमेंट ते रजिस्टेंस की डायरेक्शन आपस ऑपोजिट तां नैगेटिव आया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल। चेंज होती है कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी की होती है इनिशियल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो ये आ गया माइनस। हुण ये नहीं पता कि जो हिट कर रहा है वेलोसिटी कितनी है, दिती भी नहीं हुई उन्होंने, जो हिट कर रहा सी उस टाइम वेलोसिटी कितनी होगी, फिर आप यूज सपोज कर लेने हिट किया जो वेलोसिटी यूज सपोज कर लेने, तो ये आ गया हाफ एम यू स्क्वायर। देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, जब वर्क एनर्जी कर लो, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी, वर्क डन ये पुराने कंसैप्ट आई, मैं इदा लिख रहा, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, एम यू स्क्वायर बाय 2a, रजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। सो ये चीज़ अपने को आ गई। हुण आप अगे नैक्सट पार्ट करना, डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस कितना होगा इस केस आ डिस्टेंस, ये हुणे फ्री टू मूव आ, इस केस च डिस्टेंस कितना होगा वो देखना अपने। सो देख रहे हैं ये दो डायग्राम तो हो गई हैं, लोड की जगह ये पेनिट्रेट करने तो बाद की डायग्राम, जी डायग्राम पहली बनाई सी नंबर 1 पाया सी, मैं बना रहा नंबर 1 डायग्राम। ये पेनिट्रेट करने तो हिट करने तो पहला दी है, इसका मास एम, ये एम की वेलोसिटी आप यूज सपोज की हुई है। तो देखो हुण ये इन्ना डिस्टेंस अंदर जाऊगा, उस केस लभना आप हुण कितना होगा। चलो करते हैं आप इस केस वैल्यू कितनी बनेगी। हुण जिहड़ी गल समझनी हैगी आ गल देखनी है, मैं डायग्राम दूजी भी बनाई दिना ये जी सैकेंड डायग्राम सी फिक्सड सीगा, ये डिस्टेंस अंदर गया। हुण ये गल समझनी है,
ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਨ ਟਾਰਗੇਟ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਟੂ। ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ, ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੇਮ ਆ, ਜੋ ਰजिस्टेंस ਇੱਥੇ ਹੋਗੀ ਉਹ ਰजिस्टेंस ਇੱਥੇ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? वर्क डन बाय फोर्स वर्क डन हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। हुण गल हैगी आ चेंज इन काइनेटिक। हुण ये लग रहा होगा आपां नूं कि हाफ भी उवें ही हाफ, क्योंकि बुलेट जिहड़ा हैगा वो रेस्ट ते आ गया, माइनस हाफ इनिशियल वेलोसिटी कितनी सीगी इहदी जो हिट कीता सीगा, यू ही सीगी बस। पर बुलेट की वेलोसिटी तो यू ही आ, चाहे टारगेट फिक्सड हो चाहे मूव कर, दोनों केस यू वेलोसिटी आ गई, सेम ही लगी जाता। पर जो गल समझोगे फिक्सड और फ्री टू मूव च की फर्क हो गया, फिक्सड विच ये आ कि टारगेट फिक्स आ तो गोली जिहड़ी है बुलेट हैगा हौली स्पीड घट के इत्थे रेस्ट विच आ जाऊगा। पर जे फ्री टू मूव हैगी आ, जिहड़ा बुलेट इहदे उपर वजेगा उहदे करके ये बॉडी अगे मूव करेगी, जरक लगेगी, धक्का वजेगा। जे बॉडी अगे मूव करेगी बुलेट लगता रहा और खड़ जूगा, पर बुलेट बॉडी दे विच आ, बॉडी मूव करेगी। गल समझनी है ध्यान, जिवें इत्थे मान लो गोली मारी विच वड़ गई तो लग रहा गोली रेस्ट विच आ गई। हुण इह च गोली मारी आपां ने, गोली अंदर धस गई, ये फ्री टू मूव है, ये अगे मूव करना शुरू हो गया। गोली देखो लगता रही आपां रेस्ट दे विच आ, पर वड्डी बॉडी तां मूव करेगी। जे वड्डी बॉडी मूव करेगी तो जो वड्डी बॉडी मूव करेगी वही बुलेट की वेलोसिटी होगी, तो बुलेट आप ऑटोमैटिकली इदा नहीं कह सकते रेस्ट में आ गए। अल्टीमेटली जो बुलेट की स्पीड होगी फाइनल, जो ये बॉडी स्पीड होगी वो स्पीड होगी बुलेट की इस केस। जे टारगेट फ्री टू मूव तो आप इस केस बुलेट की फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं कह सकते है। जिवें आप कहिए कि बस दे विच कोई बंदा जा रहा, इत्थे बाहर एक बंदा खड़ा हैगा, ये बस 10 की स्पीड ना जा रही है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड न, जो बाहर बंदा खड़ा हैगा तो बंदा रेस्ट में बैठा ही आराम, पर जो बंदा बाहर है उन्हें लगेगा कि बंदा भी मूव कर रहा है, जो बस की स्पीड होगी वही यही स्पीड होगी। वही केस ये आ कि बुलेट तो रेस्ट में आ गया, पर जरक लगन नाल ये बॉडी मूव करनी शुरू होगी, तो जो ये बॉडी की मूव वेलोसिटी होएगी वही बुलेट की वेलोसिटी होगी, तो बॉडी की वेलोसिटी जो है वो भी सपोज कर रहे हैं बुलेट लगन तो बाद, क्यों फ्री टू मूव है तो ये आ होगा। ये गल्लां ध्यान रखनी। फिर होर की होगा, मोमेंटम वाला कंसैप्ट पता आपां नूं, कंजरवेशन बाय, पहले लिख लिया चलो जी, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी, ये आ गया अपने को माइनस आर इंटू बी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर हाफ एम यू स्क्वेयर। ये नंबरिंग 1 पा के, ये नंबरिंग 1 पा लो, ये नंबरिंग 2 पा के रख लेना। कटना आप बी डिस्टेंस, होर की कर सकते हैं आप लीनियर मोमेंटम की गल हो सकती है। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहला लीनियर मोमेंटम कितना होगा, बॉडी हिट नहीं की हैगी, ये रेस्ट विच सी टारगेट, ये बॉडी मूव कर रही सी, तो मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी। पहला मास मूव कर, दूजा मास मूव नहीं कर रहा। हिट करने तो बाद टारगेट फ्री टू मूव सी, इसकी वेलोसिटी आप 20 मान ली इधरले पासे, तो ओवरऑल मास की होगा ये, जैसे कह लो एक तो मास दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं, एक तो मास एम, एक मास स्मॉल एम, दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो ओवरऑल मास जो हो गया एम प्लस स्मॉल एम हो गया, बिकॉज ये स्मॉल एम पिछे धस गया, ओवरऑल मास जो है स्मॉल एम प्लस एम हो गया, बुलेट का प्लस टारगेट का मास इनटू वेलोसिटी। ये फाइनल मोमेंटम हो गया, इनिशियल हो गया। इतों v की वैल्यू कढ़ लवांगे आप, ये आ जाएगा m अपॉन m प्लस m u, ये v की वैल्यू आ गई। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ समझ आई होवे तो यही गल्लां दिमाग च रखणियां ने, इत्थे भी यही गल। हुण काली काल च यही गलती हो जाती है आपां नूं,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आऊगी, पहला कितनी सी, फाइनल कितनी होगी। देखो हुण जिहड़ी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हैगी आ, ओवरऑल देख रहे हैं आप, जिहड़ी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हैगी आप ओवरऑल देखनी हैगी आ कि ये दोने इकट्ठे मूव कर रहे हैं। इनिशियली तो चलो आ मास कला मूव कर रहा सी, मास इंटू हाफ एम वी स्केयर मास मूव कर रहा है इंटू वेलोसिटी का स्केयर आ गया, ठीक है जी। फाइनल दे विच ये स्मॉल एम ते कैपिटल एम दोने इकट्ठे होकर मूव कर रहे हैं, तो यदि काइनेटिक एनर्जी की होगी जिवें उरे किता हैगा, ये मास ओवरऑल मास लवांगे कि ये दोने इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम आऊगा मास इत्थे। ये गल्लां ध्यान ना करनियां, ये मास हो गया ओवरऑल, कितनी वेलोसिटी मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी मूव कर रहा है, जिवें आपां इत्थे कीता, इस सारी गल्लां ध्यान नाल देखनियां। चलो आपां मेन काम सीगा स्मॉल बी कढना हैगा, हुण की करांगे आपां, एक तां आर दी वैल्यू भरांगे इहदे विच, एक मैं लिख दवां ठीक कर लो, एक तां आर दी वैल्यू भरनी आपां इहदे विच, एक भरनी हैगी आपां ने वैल्यू वी दी, इहदे विच भर रहा नंबरिंग 1 च, नंबरिंग 3 पा लो, पुट किता पुट 1 and 3 in 2, therefore माइनस ए सीगा एम यू स्केयर बाय 2a, b इज इक्वल्स टू हाफ एम प्लस एम, b की वैल्यू भरती, एम स्केयर यू स्केयर अपॉन एम प्लस एम का स्केयर माइनस हाफ एम यू स्केयर। मैं सॉल्व कर लांगे, बी कढ़ लांगे, इस तो बाद ये आ जाएगा माइनस एम यू स्केयर बाय 2ab हाफ एम यू स्केयर बाहर आ गया, एम अपॉन एम प्लस एम माइनस 1, हाफ कट गया, एम कट गया, यू कट गया, ये आ गया एम माइनस एम अपॉन एम प्लस एम माइनस एम अपॉन एम प्लस एम। ये आ गया माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एम प्लस एम, तो बी की वैल्यू आ गई एम ए अपॉन एम प्लस। ये पहला पार्ट हो गया कि बी डिस्टेंस जो है जे टारगेट फ्री टू मूव होएगा तब बुलेट इन्ना पेनीट्रेट करेगा अंदर। हुण इस तो बाद नैक्सट गया लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी, वो देख लो, देयरफॉर लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी, ये की हुंदा, जो पहला काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस इनिशियल माइनस फाइनल, आही चीज़ है सारी, ये फाइनल माइनस इनिशियल कितनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल माइनस इनिशियल होगा, सेम आही चीज़ आऊगी, फिर तो वैल्यू भर देवांगे सारा, ये वी की वैल्यू भर देवांगे, ये आपने फाइनल माइनस इनिशियल की है, ये इनिशियल माइनस फाइनल लास्ट वास्ते, इनिशियल माइनस फाइनल सिर्फ साइन का फर्क होगा, तो यह आंसर की आऊगा एम पॉजिटिव आऊगा, अगे नाल की आऊगा हाफ एम यू स्केयर, ये क्यों, क्योंकि ये कट गया सीगा, ये 16 के आच ही बन जाएगी। ये की है, ये काइनेटिक एनर्जी है जो पहला सी हिट करने तो पहला सी, यही आप शो करना सी जो लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी है उस कैपिटल एम अपॉन एम प्लस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी जो पहला सी, एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, ये आप शो करना सी।
अगे क्वेश्चन देखना जी आप इस तो बाद। स्टेटमेंट देख लो, क्वेश्चन स्टेटमेंट की है जी। A body of mass m1 plus m2 is split into two parts of masses m1 and m2 by an internal explosion which generates kinetic energy E. Show that if after the explosion the parts moves in the same line as before, their relative speed is under root 2e m1 plus m2 upon m1 plus m2। ये डायग्राम देखो की हैगी, एक मास है, यह m1 प्लस m2 मास आ, इधर जा रहा है वेलोसिटी u, वेलोसिटी मतलब इधर मूव कर रहा है। ਇਹਦੇ अंदरों ही एक्सप्लोजन होया, एक्सप्लोजन होने नाल यह दो मासिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, m1 m2 m1 m2 दो मासिस ਸਪਲਿਟ हो गया। ये भी इसी डायरैक्शन जा रहे हैं, जिवें पहला डायरैक्शन जा रहा सी बॉडी, उसी डायरैक्शन से मूव कर रहे हैं। यदि वेलोसिटी मान लो v1 है, यदि वेलोसिटी v2 है। हुण रिलेटिव स्पीड की होगी पहला पढ़ चुके हैं आप, दोनों इको लाइन जा रही ने, इको डायरैक्शन जा रही हैं, v1 वेलोसिटी जा रहा है, ये v2 वेलोसिटी जा रहा है। ये अकॉर्डिंग देखोगे ये स्पीड कितनी होगी v2 माइनस v1, ये अकॉर्डिंग देखोगे ये स्पीड होगी v1 माइनस v2, मतलब चाहे v2 माइनस v1 पढ़ लो, इनू रिलेटिव वेलोसिटी कह लो, चाहे v1 माइनस v2 पढ़ लो। ये लास्ट चैप्टर च आप कर चुके हैं। तो आप इस केस की करांगे, जिहड़ा मर्जी कर लो, मैं v1 माइनस v2 कटूंगा जी, v1 माइनस v2, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी अपनी। चलो ये आ गया अपना। तो उन्होंने एक जनरेट की गल की, जो किनेटिक एनर्जी जनरेट हुई हैगी। चलो आप देखते हैं की कहा उन्होंने। पहला बॉडी दो मासिस इकट्ठे जुड़ के एक बॉडी बनी हुई सी, यू वेलोसिटी मूव कर रही सी, अंदर एक्सप्लोजन होया, एक्सप्लोजन होने नाल ई किनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। तो ई किनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने नाल की हो गया, ये दो मासिस कन्वर्ट हो गया m1 ते m2। ये भी उसी डायरैक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरैक्शन से पहला मूव कर रहे थे, सेम डायरैक्शन से मूव कर रहे हैं। तो कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लावांगे आप, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये की होगा, जो पहला लीनियर मोमेंटम सीगा वही बाद विच होगा, ये बराबर होंगे। मतलब u की वैल्यू कढ़ ली अपने m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 नंबरिंग 1 पा ली। हुण गल समझनी है की हैगी, उन्होंने कहा जो एक्सप्लोजन होया, एक्सप्लोजन होने तो बाद ये ई किनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। हुण ये किवें आ देखो, जे गल हो रहा अपना बॉडी जा रही है, यदि किनेटिक एनर्जी मान लो 10 जाऊल, एक्सप्लोजन होया, एक्सप्लोजन हो के दो बॉडियां बन गई दी, तो यदी ओवरऑल किनेटिक एनर्जी जिहड़ी हैगी आ वो 15 जाऊल। पहला एक्सप्लोजन होने तो पहला यदी किनेटिक एनर्जी कितनी सीगी 10 जाऊल। एक्सप्लोजन होने तो बाद इहदा किनेटिक एनर्जी कितनी होगी ओवरऑल हाफ m1 v1 स्केयर प्लस हाफ m2 v2 स्केयर किया, यही टोटल किनेटिक एनर्जी मान लो 15 जाऊल होगी। इतों की कह सकता कि ओवरऑल एक्सप्लोजन तो बाद किनेटिक एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है, एक्सट्रा कितनी प्रोड्यूस हुई है, या कितनी किनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। तो आप कहांगे कि एक्सप्लोजन तो बाद पहला 10 सीगी, बाद चों 15, तो इत्थों लग रहा है कि एक्सप्लोजन होने नाल 5 एक्सट्रा प्रोड्यूस हुई है। 10 तो पहली हैगी सीगी, मतलब एक्सप्लोजन होने दे नाल 15 माइनस 10, 10 वाली बाद चों 15 होगी, पहला 10 सीगी, तो ओवरऑल सबट्रैक्ट किया 5 एक्सट्रा प्रोड्यूस हुई है एक्सप्लोजन होने नाल। तो एक्सप्लोजन होने नाल किनेटिक एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है 5। दोबारा सुन लो, 5 क्यों प्रोड्यूस हुई है, 10 तो पहला सीगी, 5 एक्सप्लोजन प्रूव होगी, मतलब प्रोड्यूस होगी। तो 10 प्लस 5 ओवरऑल 15 बन जाएगी। तो किनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड किवें करनी हैगी आ, जो फाइनल हैगी आ फाइनल माइनस इनिशियल कर देवांगे, फिर लग जू, और डिफरेंस देख के लग जूगा पता आपां कि किनेटिक एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है। तो हेयर किनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड
ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, E ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਫਾਈਨਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ। ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਆਊਗਾ ਹਾਫ m1v1 ਸਕੇਅਰ ਹਾਫ m2v2 ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ m1 plus m2, ਮਤਲਬ ਹਾਫ m1 plus m2 v ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, E ਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ u ਮੰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ u ਆਊਗਾ। ਬਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਹਾਫ m1 u1 ਸਕੇਅਰ ਹਾਫ m2 v1 ਸੌਰੀ v2 ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ m1 plus m2, u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ m1 v1 m2 v2 ਬਟਾ m plus ਸਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਤਾ is equals to E। ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ, ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, v1 minus v2 ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ, ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਐਲਸੀਐਮ ਆਊਗਾ 2 m1 plus m2, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ m1 plus m2 v1 ਸਕੇਅਰ m2 ਸਕੇਅਰ m2 ਸੌਰੀ m1 plus m2 v2 ਸਕੇਅਰ minus m1 v1 m2 v2 square is equal to A। ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ m1 ਸਕੇਅਰ v1 ਸਕੇਅਰ m1 m2 v1 ਸਕੇਅਰ m1 m2 v2 ਸਕੇਅਰ m2 ਸਕੇਅਰ v2 ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ m1 ਸਕੇਅਰ v1 ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, a ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ 2ab ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮਾਈਨਸ m2 ਸਕੇਅਰ v2 ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 m1 m2 v1 v2। ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, 2 m1 ਪਲਸ m2 e। ਇਹ ਉੱਧਰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕੁਝ ਟਰਮਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਟਰਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਆਹ ਟਰਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਾਮਨ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ m1 m2 ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ v1 ਸਕੇਅਰ v2 ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 v1 v2 2 m1 plus m2 e। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ m1 m2, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ v1 minus v2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ is equals to 2 m1 plus m2 e। this implies v1 minus v2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ 2 m1 plus m2 e over m1 m2, therefore v1 minus v2 ਆ ਗਿਆ under root of 2। ਇਹ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਲੈ ਰਹੇ ਇਕੱਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ ब्लॉक
of wood of mass m kg which is free to recoil when it is struck by a bullet of mass m kg with a velocity of v meter per second in a direction passing through the center of gravity. Again, if the bullet is embedded a meters, show that the resistance of the wood to the bullet exposed uniform is this. ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ show ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ. ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਗਿਆ and that the time of penetration is 2a by v seconds during which the block will move ma upon m plus m meter. ਇਹ question ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ. डिटेल पुछिया काफ़ी वो सारिया पिछले फॉर्मूले यूज़ होंगे तो डिटेल निकलेगी. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी तां ही है, ये पिछले कंसैप्ट यूज़ होंगे काफ़ी. जे पिछले कंसैप्ट सारे पता नहीं क्वेश्चन सौखा ही है सारा. जो देखो पहला आप डायग्राम बनाने हैं जी. एक ब्लॉक वेलोसिटी इक्वल ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास m स्ट्रक बाय बुलेट ऑफ मास दिस. पहला वांगू ही है, एक बुलेट है वह मास m kg है, ये ब्लॉक है, ਇਹਦਾ मास कैपिटल M kg है, ये स्ट्रक करन तो बाद ये फ्री टू मूव है जी, हिल सकता. रिक्वायर मतलब फ्री टू मूव है जी. तो जो स्ट्रक किया जी ये अंदर जाएगा, कितना अंदर जाएगा पूछया उन्हें. ये मान लो a डिस्टेंस अंदर चला गया, दिता है सर a डिस्टेंस अंदर चला गया. इंबेंडेड हो गया, पेनीट्रेट हो गया, गल एक ही है, विच चला गया. ये तेरा मास ओवरऑल m हैगा. पहला पूछा कि यदि वेलोसिटी जो फ्री टू मूव है बुलेट लगेगा तो ब्लॉक भी मूव करे ने पिछे किया सी, ये वेलोसिटी v मान ली. ये वेलोसिटी फाइंड करने वास्ते कहा पहला अपन पहले वेलोसिटी फाइंड करने वास्ते कहा ये वेलोसिटी आप u मान लेने. बुलेट की वेलोसिटी इतनी ही है v. अपन पहला काम यह क्या वो सीधी हो जाएगा. सीधा कि मैं कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब प्रिंसिपल ऑफ बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ये होगा मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी. पहला वुड ब्लॉक रेस्ट से सीगा जी. फाइनली की होगा दोनों इकट्ठे होने, ये मास तो ये मास दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी u. जो पिछे पढ़िया सी आपने ये दोनों मास इकट्ठे विद वेलोसिटी u मूव कर रहे हैं. तो इतों u की वैल्यू कितनी आ गई m v अपॉन m प्लस m. ये तो पहला पार्ट सीगा कि कितनी वेलोसिटी ना मूव करेगा. उस तो बाद जे ये अंदर चला जाता हैगा तो ये रजिस्टेंस पता करनी है. ये हुणे क्वेश्चन किया रजिस्टेंस वाला अपन. ये प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी लावांगे. ये मैं सीधे लिख देना कि जो लिख देना वर्क डन जोड़ा हैगा ये माइनस r इंटू ए होगा. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दोनों मास इकट्ठे मूव कर रहे हैं, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी हिट करने तो पहला m v स्क्वायर. ये हिट करने तो पहला हैगी है, हिट करने तो बाद ही दोनों इकट्ठे जी पिछे कितना इकट्ठे मूव करने गया जी 5 जगह. इतों अपना ये हाफ m प्लस m u की वैल्यू भर दो. ये कितनी हैगी है m स्क्वायर v स्क्वायर. जी पिछे कितों भी है सारा जी ये कट गया. देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये कॉमन काट लो जी, हाफ m v के कॉमन निकल गया. ये आ गया m अपॉन m प्लस v माइनस 1. r आ गया माइनस r a हाफ m v स्क्वायर माइनस m अपॉन m प्लस m. तो r आ गया हाफ m v स्क्वायर m प्लस m a. ये न्यूटन च आएगा अपना आंसर. हुणे पूछा की हैगा किलोग्राम वेट विच.
किलोग्राम वेट किवें आऊगा, डिवाइड बाय न्यूटन नूं डिवाइड बाय जी कर देंगे। न्यूटन के आंसर नूं जे आपां जी नाल डिवाइड कर लीए ये किलोग्राम वेट विच आ जाएगा। ये नैक्सट आंसर सीगा। सो दो पार्ट हो गए, पुराना काम सी। हुण अगे नवां काम इहदे विच फॉर्मूले पुराने ने। यह दसो कि उरों तो लैके उरे तक पहुँचने वास्ते टाइम कितना लगेगा। टाइम पुछया, ये टाइम की गल की है। हुण यह गल अगे समझनी है, वो समझनी किवें देखो। ये फॉर बुलेट कर रहे हैं आप, बुलेट की गल हो रही है कि बुलेट ने उरों तो लैके उरे तक पहुँचने टाइम कितना लिया। बुलेट वास्ते जिहड़ा बंदा बाहर खड़ा है वो वास्ते बुलेट भी मूव कर रहा है अते मास एम भी मूव करेगा। जो बुलेट स्ट्रक करेगा अंदर जाएगा, दोनों इकट्ठे यू वेलोसिटी में मूव करने की आप बाहरों देख रहे हैं। जे बुलेट वास्ते गल करिए, बुलेट अंदर चला गया, अंदर जाके बुलेट तो रेस्ट ते आ गया, वो तो ओवरऑल बड़ा मास मूव करन लग गया। तां करके जिहड़ा अपना बाहर जिहड़ा बंदा खड़ा सी लग रहा सी कि दोनों मूव कर रहे हैं। तो बुलेट के अकॉर्डिंग जे मान लो इदां कह लवो, ये बस दे विच कोई बंदा बैठा हैगा, ये बस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल मूव कर रही है। जिहड़ा बंदा बाहर खड़ा हैगा वो लगूगा कि बस ते बंदा दोने सेम स्पीड नाल जा रहे हैं। पर जो बंदा अंदर बैठा वो तो रेस्ट ते आ, उन्हें तो लगू मैं तो आराम नाल बैठा, उन्होंने नहीं फील होगा कि मैं तुर रहा हैगा। तो उवें अंदर गल कर रहे हैं, बुलेट वास्ते गल कर रहे हैं कि बुलेट वास्ते फाइनल वेलोसिटी कितनी हैगी है, 0 फॉर बुलेट। इनीशियल वेलोसिटी कितनी हैगी है, मैं लिख ही दिना उत्थे। इनीशियल वेलोसिटी हैगी आ यू वी दी हुई है, अते जिहड़ी फाइनल वेलोसिटी हैगी आ बुलेट वास्ते यह 0 होगी। डिस्टेंस कितना हैगा ए, इनीशियल फाइनल ये पता आपां नूं। उस तो बाद ये टाइम कढ़ना, पहले जो टाइम कितना होगा बराबर कर दूं। टाइम कढ़ने वास्ते आप फॉर्मूला यूज करते हैं पहला आप। हुण ये सारे जिवें कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले हो गए, वो किवें ना हो आपको पता। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनीशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2f(s), ये फॉर्मूला होंगे। इथों f निकल जाएगा जी, f कितना आ जाएगा -v²/2a। बट टाइम कढ़ना बस आप, f निकल गया, इस बार टाइम निकलेगा जी वो होंदा जी v, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई, v इज इक्वल्स टू u प्लस fd। ये इनीशियल वेलोसिटी का ध्यान रखना अपने, इनीशियल वेलोसिटी वास्ते सिंबल v दिता है अपन। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनीशियल वेलोसिटी प्लस f इंटू t होंदा हैगा, तो v अपॉन ਜਾਂ v इज इक्वल्स टू माइनस v इक्वल टू f की वैल्यू भरती, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 2a/v। मैं 2a/v डिस टाइम के ये अंदर जाऊगा, मतलब कि पूरा अंदर धसन वास्ते इन्ना टाइम यूज करेगा। ये टाइम पूछा सीगा। उस तो बाद उन्हें पूछा हैगा कि जदों ये अंदर धसेगा, धस गया अंदर, तो ये वड्डी बॉडी ने डिस्टेंस कितना मूव किया। डिस्टेंस मूव पूछा उन्हें, डिस्टेंस जिहड़ा हैगा m/a/a डिस्टेंस कढ़ने वास्ते कहा उन्होंने। तो देखो डिस्टेंस कढ़ लेने आप। ओवरऑल ये वड्डे ब्लॉक ने डिस्टेंस कितना मूव किया, ये गल समझना नहीं सारियां। पहला तो बुलेट की गल हो रही थी कि बुलेट ने अंदर धसन वास्ते टाइम कितना लिया, तो बुलेट की गल की कि बुलेट ने अंदर धसन वास्ते टाइम, अंदर पेनीट्रेट करने वास्ते टाइम इन्ना लिया। हुण ब्लॉक की वड्डे ब्लॉक की गल कर रहे हैं। हुण लिखांगे आप फॉर वुडन ब्लॉक। हुण वुडन ब्लॉक की गल हो रही है कि जिन्ने टाइम से ये अंदर धसिया हैगा, तो वड्डा ब्लॉक, क्योंकि जो गोली बची है मूव करना शुरू हो गया, जो गोली स्ट्रक की है वुडन ब्लॉक मूव करना शुरू हो गया। ये 2a/v टाइम के अंदर धस गया, तो इन्ने टाइम के वुडन ब्लॉक ने क्योंकि जो हिट किया मूव करना शुरू हो गया,
तो इन्ने टाइम के विच डिस्टेंस कितना मूव किया ने, ये पूछे आपने इन्ने टाइम डिस्टेंस कितना मूव किया। चलो ये भी फिर वुडन ब्लॉक देख लो, जो हिट किया उदों वेलोसिटी कितनी सी 0। वुडन ब्लॉक की गल कर रहे हैं आप, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो मूव करना शुरू कर गया। हुण आप टाइम दिता है आपां नूं ते टाइम आपां नूं गिवन तो इस तो बाद फिर आप डिस्टेंस कढ़ लवांगे। जो टाइम दिता है आपां नूं, इहदी वेलोसिटी कितनी हैगी आ, वेलोसिटी जिहड़ी हैगी आ ये यू वेलोसिटी मूव कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी यू होगी। हिट करन तो बाद जो अंदर धस गया पूरा तो कितनी वेलोसिटी मूव करन लग गया, यू वेलोसिटी मूव करन लग गया। फाइनल वेलोसिटी हैगी यू होगी इस केस। ये समझ नहीं आती ध्यान, जदों ये धस गया पूरा अंदर फिर ये बॉडी यूनीफॉर्म स्पीड नाल मूव करनी शुरू होगी। कितनी स्पीड नाल मूव करनी शुरू होगी, यू स्पीड नाल मूव करनी शुरू होगी। मतलब जो हिट किया उदों रेस्ट से इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जो पूरा अंदर धस गया इन्ने टाइम बाद उदों वेलोसिटी कितनी होगी यू होगी। आ गया सारा। इस तो बाद आप डिस्टेंस करना तो एस का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस एस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ, तो ये थां दूजा यूज कर लिया आप फाइनल वेलोसिटी V स्केयर फाइनल वेलोसिटी स्केयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्केयर इज इक्वल टू वेलोसिटी पहला कटनी पैनी है, F कटना पैना पहला आपको। चलो 2FS ये डिस्टेंस कटना अपने। तो उस तो पहला अपना टाइम दिता है वो यूज़ करांगे नंबरिंग 1 पा के रख लो। यू स्केयर इज इक्वल टू 2FS आ गया, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई यू स्केयर बाय 2F, नंबरिंग 1 पा लो। आलसो बाकी सिंपल फॉर्मूले ने वो यूज़ करने कि V फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस FT। इतों U इज इक्वल टू F, T की वैल्यू कितनी सी 2A अपॉन V, देयरफॉर F कितना आ गया UV अपॉन 2A, देयरफॉर 1 बिकम्स 1 च भरता जी अपने। S इज इक्वल टू U स्केयर अपॉन 2 UV अपॉन 2A, ये आ गया UA अपॉन V, ये डिस्टेंस आ गया। हूँ V की वैल्यू कड्ढी हुई है पिछे अपने, वो हैगी सी UA अपॉन M प्लस कैपिटल M U कट गया। तो डिस्टेंस जोड़ा है मूव किया है वो हैगा M प्लस M टाइम्स A अपॉन M, ये डिस्टेंस मूव किया जी। तो यही डिस्टेंस अपन कहा सी, ये थोड़ा उल्टा आ गया आंसर, ये चेक करना पऊगा, गलती हो गई जी। वैल्यू यू की भरनी सी अपनी, मैं गलत वैल्यू भर के पिछों देख लियो, पिछे कड्ढी हुई अपने यू की वैल्यू कड्ढी सी अपने जी, वो सी M अपॉन M प्लस MV, ये यू की वैल्यू सी, ये कट गया तो ये आ गया MA अपॉन M प्लस M, ये अपना आंसर आ गया। चलो ठीक है जी, देखें इंपल्स का कंसैप्ट तक एक पहले क्वेश्चन में ही आया सी, बाकी सारे पुराने कंसैप्ट ने ये। चलो ये क्वेश्चन ट्राई कर लियो, बाकी नैक्सट लैक्चर नवा काम करांगे जी। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लियो। थैंक यू।